A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. So students, last time we started with the chapter that is cyber safety, and in that particular chapter we are left with two particular topics, that is computer virus and malware. So let's start with the first topic, that is computer virus. So virus, vital information resource under siege और very important resource under siege. So students, अगर हम वायरस की बात करते हैं, so वायरस जो वर्ड है, so वायरस वर्ड का जो मीनिंग है, that is vital information resource under siege, or you can say very important resource under siege. Now, a computer virus is a type of malicious software program, or maybe it can be called as malware, that when executed replicates itself by modifying other computer programs and inserting its own code. So students, as all of you know that हम ये जो particular term है virus, सो इसको बेसिकली हम मेलिशियस सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे मैलवेयर भी बोल सकते हैं. सो जब भी कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर करता है या जब एग्जीक्यूट होता है, तो बेसिकली ये अपनी कॉपीज़ बना देता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर, या फिर किसी भी कोड के अंदर अपने आप को इंसर्ट कर लेता है. Infected computer programs can include as well as data files or the boot sector of the hard drive. So जो भी हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम जो भी इन्फेक्ट हुआ है, तो वो कोई भी डेटा फाइल्स हो सकती है, या फिर वो आपकी हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर हो सकता है जो कि इन्फेक्ट हो चुका है. So we have numerous kinds of viruses, and these viruses are divided into 4 categories. So first of all we have boot sector virus, then we have program or file virus, then we have macro virus, and lastly we have multipartite virus. So let's see some of the examples of virus. So first example is CIH, which is known as the Chernobyl virus. It is also known as CIH. It triggers on the April 26th each year, the anniversary of the Chernobyl न्यूक्लियर डिज़ास्टर. सो CIH वायरस जो है, जिसको चेरनोबिल वायरस भी बोलते हैं हम, सो बेसिकली ये हर अप्रैल 26 को ट्रिगर होता है. ये 26 अप्रैल को इसलिए ट्रिगर होता है क्योंकि 26 अप्रैल बेसिकली एनिवर्सरी है चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर की. Then the second example of the virus is the Anna Kournikova worm. Third is I love you. Fourth is the Melissa virus. Fifth is the Blaster worm. So these were the some examples of virus, as well as हमने यहाँ पर बात करी थी different types की जो categories हैं हमारे पास virus की. Okay. So after this we will talk about malware कि ये malware होता क्या है. So malware is any program or file that is designed to damage or carry out unauthorized installations and procedures without the knowledge of the user. सो स्टूडेंट्स, malware बेसिकली एक प्रोग्राम है या फिर एक फ़ाइल है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो इस तरीके से आपके कंप्यूटर या फिर सिस्टम को डैमेज करे कि क्या उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर किसी भी टाइप की अनऑथराइज्ड इंस्टॉलेशंस होनी शुरू हो जाएं, कुछ भी इस टाइप की अजीब सी प्रोसीजर्स शुरू हो जाए जो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं, और ये सब इस तरीके से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता. Malware programs are usually poorly programmed and can cause your computer to become worms, Trojan horses and spyware. So जो हमारे पास malware programs होते हैं, these are poorly programmed. So basically इनकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से होती है कि आपके कंप्यूटर को या तो ये worms बना सकते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस बना सकते हैं, या फिर ये स्पाईवेयर बना सकते हैं. सो योर कंप्यूटर कैन बिकम अ बिग डिज़ास्टर अगर आपके कंप्यूटर में किसी भी टाइप का मैलवेयर एंटर होता है तो. ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलवेयर. सो the first type is adware, then we have hijackers, then we have toolbars, after this we have dialers, and lastly we have spam. So first of all we will talk about adware. The term adware is frequently used to describe a form of malware which is also called malicious software
which presents unwanted advertisements to the user of a computer. So most of the times जब भी हम इंटरनेट के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं तो एडवेयर हमारे पास आते रहते हैं. लाइक अगर आपने देखा हो तो कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आपके पास पॉपअप एड्स आती रहती है. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एडवेयर और यू कैन से malware. The advertisements produced by adware are sometimes in the form of pop-up or sometimes in an unclosable window. So अगर स्टूडेंट्स आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट अगर हम खोलते हैं या फिर इस टाइप की वेबसाइट विच इज़ अनऑफिशियल तो वहाँ पर पॉपअप एड्स आती हैं या फिर कोई भी हमारे पास ऐसी विंडो ओपन हो जाती है जिस इवन आप क्लोज़ करने की भी कोशिश करते हो वो क्लोज़ नहीं होती. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एडवेयर. Now the second type we have is hijackers. So अगर हम hijackers वर्ड का यूज़ करते हैं तो आपको पता है जैसे कि हम बात करते हैं कि एरोप्लेन किसी ने हाईजैक कर लिया मीन्स कि somebody has got the control of that airplane. So in the same manner hijack refers to taking control of over something and causing it to do something else. ठीक है, तो हाईजैक का मतलब ही यही है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का कंट्रोल ले लेना और उस पर्टिकुलर चीज़ का कंट्रोल लेने के बाद आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाईजैकिंग इज़ when malware affects your computer and it redirects your web browser, home page or search engine to a malicious site or somewhere you don't want to be. ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हाईजैक हो जाता है तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम का जो कंट्रोल है वो किसी और पर्सन के पास जा चुका है एंड दैट पर्सन नाउ इज़ रीडायरेक्टिंग योर वेब ब्राउज़र, योर होम पेज और मे बी योर सर्च इंजन टू सम काइंड ऑफ मेलिशियस साइट जहाँ पर क्या हो सकता है, जहाँ पर किसी भी टाइप का ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, किसी भी टाइप के वॉर्म्स हो सकते हैं विच कैन हार्म योर कंप्यूटर एंड can infect the files of and also the overall working of your computer system. ठीक है, so this was about the hijackers. After this we'll talk about the another type of virus or you can say malware, that is toolbars. So toolbars plug into any browser and provide additional functionalities such as search forms or pop-up blockers. The Google and Yahoo toolbars are the most common examples. So अगर हम toolbars की बात करते हैं so everybody of you know कि toolbar क्या होता है. Toolbars are basically for providing you different types of tools. तो ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जब हम उनको ओपन करते हैं तो वहाँ पर अलग से एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होती है टूल्स बार की. ठीक है, तो टूल बार्स बेसिकली आपको क्या करते हैं, आपके उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं एंड दे कीप ऑन ट्रैकिंग ऑल योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सो इन दिस मैनर इट कैन हार्म योर कंप्यूटर सिस्टम. Now the next type of malware is dialers. So dialers are the programs that set up your modem connection to connect to phone numbers for the usage of internet. The illegal use of dialer results in false billing to the person whose connectivity is being used legitimately. So students, हम जब डायलर्स की बात करते हैं जब भी हम मॉडेम कनेक्शन का यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं डायलर्स ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, वो मॉडेम कनेक्शन के अंदर वो इस तरीके से सेट हो जाता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर को या फिर बहुत सारे ऐसे फ़ोन नंबर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं ताकि वो इंटरनेट का यूज़ कर सकें. एंड वो उस पर्टिकुलर इंटरनेट को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो इंटरनेट वो इतना एक्सेस में यूज़ कर लेते हैं कि वो बेसिकली आइडेंटिटी आपकी यूज़ कर रहे हैं लेकिन इट शोज़ कि वो बेसिकली इसमें कनेक्शन आपका यूज़ हो रहा है एंड दैट पर्टिकुलर कनेक्शन इज़ यूज्ड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑन द इंटरनेट. आपको पता भी नहीं चलता और आपका इंटरनेट कनेक्शन यूज़ हो जाता है एंड आफ्टर दैट व्हेन यू रिसीव द बिल तो वो जो बिलिंग अमाउंट होता है दैट इज़ वेरी वेरी ह्यूज. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डायलर्स. Okay, after this we come to the last type of malware, that is spam. So all of you must have heard the name of spam. So spam को basically हम junk mail भी बोल देते हैं या फिर unwanted advertisements को भी हम spam बोल देते हैं. So basically अगर आप Gmail को अगर login करते हो तो बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं which are termed as spam.
Okay, so although measures are being taken by email providers against spamming, but it cannot be eradicated completely. So जो भी ऐसी companies है जो आपको email provide करती हैं, they are taking so many measures to avoid all these kind of things, but still ये problem अभी भी exist करती है और इस particular problem को properly completely eradicate नहीं किया जा सकता. ठीक है, so we should always be careful वाइल ओपनिंग आवर जीमेल बॉक्स कि हमारे पास ऐसी कोई मेल तो नहीं आई है जो किसी स्पैमर ने भेजी है. तो अगर आपको लगता है कोई ऐसी मेल है विच हैज़ बीन सेंट बाय अननोन पर्सन, सो आपको क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर मेल को ध्यान से या तो खोलिएगा ही मत, और अगर सपोज़ कीजिए कि उसमें कुछ एडवर्टीजमेंट है या फिर किसी टाइप की अटैचमेंट है, सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू इग्नोर दैट पर्टिकुलर मैसेज. Okay students, so that's all about your chapter. Please watch this video very carefully. Thank you so much.